ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਲੇਖ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੋਟਸ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਖੋਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਉਹੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਲੌਤਾ ਹਨੂਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸੁਜਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਲਾਸਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਂਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਸੋਟਾ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਖੇਤ ਵਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ? ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਸਾਲਾਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਨ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਾਲਾਸਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਹੋ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਡੂੰਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਬਣੀ। ਸਿੱਧ ਪੀਠ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਆਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ? ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਔਖੜਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਕਦਮ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਉਹ ਖਾਸ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰੀਕ ਨਕਾਸ਼ੀ, ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ, ਇੱਕ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਵਿਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਨੂੰ। ਪੁੰਨਿਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਬੰਨਣ ਨਾਲ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਠ? ਓਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ। ਸਰੋਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਡਰ, ਚਿੰਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਹਤ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਹਤ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਚੂਰਮਾ? ਹਾਂ, ਬਾਜਰੇ ਦੇ ਚੂਰਮੇ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਸਥਾ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਰਤ? ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਬਾਲਾਜੀ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਲਾਸਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ? ਕਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਖੋਜ ਵਿੱਚ 3 ਮੁੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਾਰਵਾੜੀ ਵਪਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰੋਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬੰਧ ਥੋੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, VIP ਦਰਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ? ਗੈਰ ਪੁਜਾਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਦੇਵਤੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਚੁਰੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ 49-50 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ। ਬਾਬਰੇ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਦੀਕੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਜੈਪੁਰ ਹੈ, ਕੋਈ 179 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਰੇਲ ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਜਾਨਗੜ੍ਹ, ਸੀਕਰ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। VIP ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਸਰ ਬਾਲਾਜੀ ਮੰਦਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੂਰਤੀ, ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਮਤਲਬ ਸਾਲਾਸਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੀਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ, ਉਹ ਦੂਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के चूरू जिले में एक बहुत ही आप कह लें खास मुकाम की, सालासर बालाजी मंदिर की। जी, भगवान हनुमान के लिए वक्फ है ये मंदिर। बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो इसे काफी मुनफरिद बनाती हैं। हमारे पास जो मालूमात हैं, कुछ मज़ामीन, रिसर्च वगैरह से, वो इसकी तारीख, वहाँ की रसूमात और कुछ समाजी पहलुओं पर भी रोशनी डालती हैं जो शायद इतने आम ना हो। सही। तो आज हमारा इरादा है कि हम जरा गहराई में जाकर देखें कि इस मुकाम की, सालासर धाम की इनफरादियत क्या है, वहाँ अकीदत कैसी है, और कुछ ऐसे पहलू जो कम सुनने में आते हैं। बिल्कुल, और शुरू ही एक बहुत ही मुनफरिद बात से करते हैं। वो क्या? वो है खुद हनुमान जी की मूर्ति। जो मालूमात है उनके मुताबिक शायद ये हिंदुस्तान का वाहिद मंदिर है जहाँ हनुमान जी की मूर्ति दाढ़ी और मूंछों वाली है। वाकई? जी। दाढ़ी और मूछें, ये तो मैंने पहली बार सुना है। जी। अच्छा, तो ये मूर्ति मिली कैसे, कहानी क्या है इसकी? कहते हैं किसान से शुरुआत हुई। जी हाँ, कहानी कुछ यूं है कि एक किसान थे, वो अपना खेत जोत रहे थे कि उन्हें ये मूर्ति मिली, जिसे स्वयंभू कहते हैं, यानी खुद से जाहिर होने वाली। अच्छा। और तकरीबन उसी वक्त सालासर में एक और साहब थे, मोहनदास जी, बड़े भगत थे हनुमान जी के बचपन से ही। बाद में तो खैर उन्होंने दुनियादारी छोड़ दी थी जी। तो उन्हें ख्वाब में इशारा हुआ हनुमान जी की तरफ से। ख्वाब में? क्या इशारा था? यही कि ये जो मूर्ति मिली है ना असाटा गांव में, इसे सलासर लाओ और यहाँ कायम करो। अच्छा। तो फिर मोहनदास जी ने ही सन 1754 में, यानी अगर हम संवत में देखें तो 1811 बनता है, उस मंदिर की तामीर शुरू करवाई। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह भी है, कुछ जगह जिक्र मिलता है कि इसकी तामीर में मुसलमान कारीगरों ने भी हिस्सा लिया था, नूरा और दाऊ नामी। ये तो वाकई बहुत दिलचस्प बात है उस जमाने के लिहाज से, हमआहंगी की मिसाल। जी बिल्कुल। क्या तामीर से जुड़ी कोई और कहानी भी है, जैसे मूर्ति लाने के बारे में? हाँ, एक बात अक्सर सुनने में आती है, कहते हैं जिस बैलगाड़ी पर मूर्ति लाई जा रही थी ना जी, वो रास्ते में एक जगह खुद ही रुक गई, बस आगे नहीं बढ़ी, तो उसे बालाजी की मर्जी समझा गया और वहीं मंदिर बनाने का फैसला हुआ। सुभान अल्लाह, अकीदत की बात ही कुछ और है। अच्छा, वहाँ हनुमान चालीसा का विर्द बहुत आम है ना? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई हनुमान चालीसा वहाँ बहुत पढ़ी जाती है। लोगों का यकीन है कि इससे मतलब जहनी सुकून मिलता है, इल्म बढ़ता है, बुरी नजर या मनफी ताकतों से हिफाजत होती है और कामयाबी भी मिलती है, ऐसा मानते हैं। जी हाँ, और एक और खास रस्म है वहाँ की, नारियल बांधने की। हाँ, वो मन्नत मांगने के लिए? बिल्कुल, लोग धागे से नारियल बांधते हैं अपनी मन्नतों मुरादों के लिए। और वहाँ जो मेले लगते हैं चित्रा और आश्विन महीनों में, वो भी बहुत बड़े होते होंगे। जी, वो साल के 2 बड़े मौके होते हैं, मार्च, अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में। और ये जो सफर है ना सालासर का, ये खुद अकीदतमंदों के लिए एक तरह का रूहानी सफर समझा जाता है, जिंदगी की मुश्किलात पर काबू पाने जैसा। और भोग में क्या खास चढ़ाया जाता है? खास तौर पर बाजरे का चूरमा और लड्डू, ये बालाजी को बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये मंदिर असल में है कहाँ, मतलब लोकेशन क्या है इसकी? ये राजस्थान में चूरू जिला है, जयपुर से बीकानेर जाने वाली जो शारा है उसी पर वाक़या है। और देखने में कैसा है फने तामीर? वो तो खास राजस्थानी अंदाज है, बहुत खूबसूरत काम है। मंदिर के औकात क्या रहते हैं अगर कोई जाना चाहे? उमूमन सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात 10 बजे तक खुला रहता है। दिन भर आरती वगैरह होती रहती है, और हाँ, कुछ जराए ये भी कहते हैं कि VIP दर्शन की सहूलत भी है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर, जो एक तहकीक से सामने आया है। ये थोड़ा सा शायद जो आम ख्याल है उससे हटकर है। जी, एक तहकीक का जिक्र मिलता है जो थोड़ा गौर तलब है। वो ये कहती है कि ठीक है, सब लोग बालाजी के अकीदतमंद हैं, मुश्तरका अकीदत है, लेकिन कभी कभी सालासर में जो जियारत का तजुर्बा है, वो जो पहले से समाज में तकसीम मौजूद है ना, हाँ, उससे कम करने के बजाय शायद और वाज़े कर देता है। ये कैसे, मतलब तहकीक क्या कहती है तफसील से? तहकीक कहती है कि वहाँ मुख्तलिफ ग्रोह हैं, जैसे मारवाड़ी ताजिर हैं, वो मंदिर के बड़े हमायती हैं, उन्हें कुछ खास सहूलियात भी शायद मिलती हों। फिर जाट किसान हैं, ब्राह्मण हैं, पुजारी भी और गैर पुजारी भी। जी। तो ये सब लोग अकीदत तो रखते हैं, लेकिन अक्सर अपनी अपनी कम्युनिटी के जाविये से, अपने मफादात के नुक्ता नजर से उस अकीदत का इजहार करते हैं। यकीनन हम यहाँ सिर्फ तहकीक का नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं, जैसा कि हमें मिला है। ये तो वाकई एक पेचीदा बात है, यानी मजहबी मकाम होने के बावजूद समाजी और माशी हकीकतें वहाँ भी अपना असर रखती हैं। बिल्कुल, ये उस ख्याल को चैलेंज करता है कि जियारत हमेशा मुकम्मल इत्तेहाद ही पैदा करती है। हकीकत शायद ज्यादा नुआंस्ड है। तो अगर हम समेटें सारी बात को, तो सालासर बालाजी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तारीख, मौजज़ात, गहरी अकीदत और
साथ ही साथ जैसा कि तहकीक बताती है कुछ पेचीदा समाजी पहलुओं का भी मरकज है। वो दाढ़ी मूंछों वाली मुनफरिद मूर्ति से लेकर लोगों के पुख्ता ईमान तक। और फिर ये समाजी तहकीक के नताइज तक ये जगह वाकई कई जहतें रखती है। जी, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल, और वो सवाल शायद ये है कि कैसे किसी एक मुकद्दस हस्ती के लिए इतनी गहरी, इतनी शदीद मुश्तरका अकीदत उसी समाज के अंदर मौजूद गहरी समाजी तकसीम और माशी फर्क के साथ न सिर्फ एक ही वक्त में मौजूद रह सकती है, बल्कि शायद जैसा कि तहकीक इशारा करती है, कभी कभी उन्हें मजीद नुमाया भी कर देती है। ये एक नुक्ता है जिस पर यकीनन सोचा जा सकता है। नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोचिए एक ऐसी जगह जहां विश्वास इतना गहरा है कि चमत्कार जमीन से खुद प्रकट हो जाते हैं। चलिए आज आपको एक ऐसे मंदिर ले चलते हैं जिसका रहस्य आपको पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पवन पुत्र हनुमान जी दाढ़ी और मूंछ के साथ विराजमान है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अद्भुत और चमत्कारी स्थान है राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर बालाजी धाम, जहां हर कोने से भक्ति की ध्वनि आती है। इस मंदिर की कहानी भी उतनी ही दिव्य और रोचक है जितने की बालाजी के दर्शन। ये बात है लगभग 250 साल पुरानी। सन 1754 में असोता नाम के एक गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था, जब अचानक उसका हल एक मीठी गूंजती हुई आवाज के साथ किसी चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो जमीन से बालाजी की एक ऐसी प्यारी और तेजस्वी मूर्ति प्रकट हुई मानो वो सदियों से उन्हीं का इंतजार कर रही हो। उसने बड़ी श्रद्धा से मूर्ति को साफ किया और उसी वक्त अपने साथ लाए हुए बाजरे के चूरमा का भोग लगाया। यह पहला भोग था जो प्रभु को अर्पित हुआ। असली चमत्कार तो उसी रात हुआ जब दो अलग अलग जगहों पर दो भक्तों को एक ही सपना आया। एक तरफ थे सालासर में रहने वाले बालाजी के परम भक्त श्री मोहनदास जी और दूसरी तरफ थे असोता के जमींदार। दोनों को स्वयं बालाजी ने सपने में दर्शन दिए और आदेश दिया कि असोता में प्रकट हुई मूर्ति को सालासर में स्थापित किया जाए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोहनदास जी को बालाजी ने सपने में दाढ़ी मूंछ वाले रूप में ही दर्शन दिए थे। इसीलिए जब मूर्ति को पूरे मान सम्मान के साथ यहाँ लाया गया तो उनका श्रृंगार बिल्कुल उसी रूप में किया गया। आज ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ आपको हनुमान जी के इस अनोखे प्रेम और शक्ति से भरे स्वरूप के दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन इस धाम की दिव्यता सिर्फ बालाजी के इस अनोखे स्वरूप तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की एक और परंपरा आपका दिल जीत लेगी। आपने देखा होगा कि लोग अपनी मन्नतें पूरी होने की कामना के लिए मंदिर परिसर में एक प्राचीन खेजड़ी के पेड़ पर लाल कपड़े में नारियल बांधते हैं। हर साल यहाँ लाखों नारियल इकट्ठे होते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि उन नारियलों का आखिर होता क्या है? उन्हें ना तो कहीं फेंका जाता है और ना ही जलाया जाता है, बल्कि पूरे आदर और सम्मान के साथ मंदिर से लगभग 11 किलोमीटर दूर एक बड़े से खेत में जमीन के नीचे दबा दिया जाता है। ये खूबसूरत परंपरा पिछले 200 सालों से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। ये दिखाता है कि यहाँ आस्था के साथ साथ प्रकृति का कितना सम्मान किया जाता है। इसके अलावा मंदिर में पिछले 250 सालों से एक अखंड ज्योति और एक पवित्र धूनी भी निरंतर प्रज्वलित है, जो भक्त मोहनदास जी ने शुरू की थी। माना जाता है कि इस धूनी की विभूति में अद्भुत शक्ति है। भक्त यहाँ से इसकी विभूति ले जाकर अपने सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर करते हैं। अगर आप सालासर बालाजी के सामने एक मन्नत मांगते तो वो क्या होती? हमें कमेंट करके बताइए। और ये भी कि इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और अनोखे मंदिरों और उनकी दिव्य कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय बजरंगबली।